So, good evening, everyone. Sat Sri Akal, Adab, Salam Alaikum, and Namaste to all. We are yet again back here with a new episode of My Unscripted Moments from UNYC LPU. And I am your host, Sachin Sidra. So, आप सभी का स्वागत है, welcome, and I like it the way people are getting added to this live. It is electrifying. The energy is definitely electrifying, and I see a lot of people, a lot of requests. Oh my god! So there are a lot of requests coming in, and people want to join the live. But yes, we have our guest arriving soon. And today, the guest that we have is someone that you can call a very familiar face because you all have seen him, you all have heard him, some of you have loved him, some of you have hated him, but we all have a resemblance or an acquaintance with him. And very soon he'll be here with us, and I'm really happy that I can see all of you. Thank you so much. I am doing really well. Good evening, good evening, good evening, everyone. And thank you so much. The compliments are flowing in, and thank you so much. Thank you, everyone. And this is something. This is something really exciting. People have been showering wishes, tags, and all that, and this is really good. And we all at LPU and the LPU family is proud that 11 Olympians that are representing India at the Tokyo Olympics 2021 are from the lovely professional university student family, and we are so happy about it. And not just that, we are also happy that our country is doing pretty well for the representation. Yes, there were some disappointments yesterday, but we are doing pretty well now, and I'm really happy meeting all of you and seeing all that energy going around. And it is really electrifying again. I'd like to say yes, LPU rocks. I can see that hashtag going on here. Definitely it does rock. And yes, we all have been here for quite a long time, and it's time that we add our guest to our live now. Are we ready? So we are going to add our guest. Very soon we are going to add him here, and we'll have him here with us. So I think he joins in on and till then, so how's everyone doing? All good? Good evening sir. Good evening. नमस्कार, क्या हाल है? बस बढ़िया सर. And सर, आपको देख के पहले तो 2 मिनट मैं कंट्रोल कर लूं, because for me it's a fanboy moment. I'll be very honest. I have Thank you. known your face, and I've known you from Swabhiman. तो स्वाभिमान से आपकी मेरी पहचान हुई है, और तब से मैं आपको जानता हूँ. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया कि वो तभी से लेके अभी तक बर्दाश्त किए जा रहे हैं आप. जी सर, एंड बर्दाश्त करने के बहुत सारे रीजंस आप दे रहे हैं कि once time and again you come up with such great performances, and I must say that you've stopped aging, I guess, according to me, because I was just going through your profile. I think your daughter has grown up, but you're still the same. थैंक यू. आई गेस ये हमारी जेनेटिक्स का नतीजा है. माँ बाप ने अच्छे जेनेटिक्स दिए हैं, इसलिए जैसे हैं वैसे हैं. Right, absolutely right, sir. And sir, speaking of fitness and looking good, so are you into sports? Well, yes, I'm into sports. I've always been into sports, but currently for the last I think 3-4 years वो थोड़ा सा कम हो गया है. पहले क्रिकेट बहुत चाव से खेलते थे. सभी लोग खेलते थे. हमारी एक टीम भी है CCL में जो खेलती है, मुंबई हीरोज. लेकिन पिछले 3-4 ये 1.5 साल से तो कुछ भी नहीं खेल पाए.
स्पोर्ट्स में चाव हमेशा रहा है। मेरी बिलीफ रही है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तभी तो ये आईपैड, ये लैपटॉप कुछ था ही नहीं, PS4 प्लेयर वेयर कुछ नहीं था। तो खेलना होता था तो बाहर जाना पड़ता था घर से, और तभी फुटबॉल भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, खो खो भी खेलता था। लेकिन आजकल थोड़ा सा कम हो गया है। So, sir, asking you this question since it's Olympic season, जी, which sports person are you looking forward to watching in the Olympics at यार the moment? I have a soft corner for Mary Kom because I've had the good fortune of meeting her, knowing her briefly. बहुत मैं इंस्पायर्ड हूँ उनसे। वैसे एक्चुअली मैं कहूँगा कि मैं सभी को देखना चाहता हूँ, क्योंकि दे आर ऑल Hmm. मेकिंग प्राउड। और एक सिल्वर तो जीत चुके हैं ऑलरेडी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुकी हैं मीरा बहन। मुझे लगता है कि इस बार हमारी जो महिलाएं हिंदुस्तान की बहुत कमाल दिखाने वाली हैं। लेकिन मैं सभी को देखना चाहता हूं। मैंने एक नाम मैरी कॉम का सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। जिस स्टेज पे वो हैं, ऑलरेडी 6 मेडल्स, खिताब जीत चुकी हैं दुनिया भर में। अभी भी शी हैज क्वालिफाइड। इस उम्र में इतने बच्चे होने के बाद ये जो ग्रोइलिंग स्पोर्ट का हिस्सा वो हैं, ये कोई आम अचीवमेंट नहीं है। आप कोई रोज सुबह उठ के ये नहीं कह सकते चलो आज एक बार और compete कर लेते हैं। Her level That's of true. her dedication, her fortitude is amazing. Mary Kom inspires me every day. And but having said that, I'm looking forward to each and every one of us to go there and perform and bring us back plaudits for the country. Yes, that's absolutely true. And sir, before I move any further to the next question, let me just tell you, this time we have a very proud moment as a university because first time in I India it has happened I that know. 11 Olympians, 8 universities है. So we can't just stop talking about it. And I मैं had to share this with you. मैं जानता हूं, और मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं आपके साथ इस लाइव चैट पे बातें कर रहा हूं, क्योंकि 11 11 ओलंपियंस आपके पास आउट हैं लवली यूनिवर्सिटी की। आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे। हाय शेरी, हाउ आर यू डूइंग डार्लिंग? आई डिडंट नो यू वर गोइंग टू बी हियर। गुड टू सी यू। एंड All बहुत right. बहुत शुक्रगुजार जो आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड यू आर लिसनिंग टू अस। होपफुली वी विल हैव अ गुड चैट। यस। Definitely, sir. Definitely. And I think not just that, we have just, we have been mentioned by some very famous people around the country. Naming one, Virat Kohli, जिन्होंने आज ही हमारे लिए एक post डाली थी. I think this is one of a kind of feat that we have achieved, and it's all thanks to the students that goes out from our side. So I'll take a moment for thanking our students for being so talented, and we would say please keep showing your talent just like this. So, sir, I'll start with one thing that I liked in your profile a lot, and that was a picture with a motorcycle. जी जी। Indian motorcycle. So a very swanky looking bike and a very handsome looking man on that. So tell me, how's your how's your collection of automobiles going around? And because I've read a lot कि आपके पास काफी सारी, आपके पास एक Willys original Willys Jeep भी है. So tell us about that, please. नहीं, ये जो बाइकों का सवाल है तो ये हर जो भी लड़का है वो बचपन से शौक रखता है बाइक्स का। लेकिन जब मैं छोटा था, ऑब्वियसली व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, उतने पैसे थे नहीं कि बाइक्स खरीद सके। तभी सुपर बाइक्स इंडिया में आई नहीं थी, बहुत महंगी थी बाइक। और ऊपर वाले ने सोचा होगा कि भाई बचपन में इसे नहीं दिया है, जवानी में दे दे। तो मुझे पिछले 10 बाइक्स चलाने के मौके मिले हैं। वर्ल्ड की बेस्ट बाइक्स मेरे पास रही हैं। अभी तो फिलहाल दुनिया की 2 बहुत खूबसूरत बाइक्स हैं। एक है इंडियन स्काउट बॉबर और दूसरी है इंडियन कंपनी की FTR 1200S फ्लैट ट्रैकर। लेकिन इससे पहले जो मेरे पास बाइक थी, दैट वाज एक्चुअली फीचर्ड इन अ लॉट ऑफ मैगजीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका नाम था होंडा रून। इट वाज अ 1900cc बाइक, और Oh my God. सिर्फ 600 बाइक्स थी। तो एक आर्टिकल में सिर्फ माही भाई की और मेरी बाइक का जिक्र आया था। उनके पास एक हेलकैट है और मेरे पास ये होंडा। लेकिन फिलहाल मेरे पास जो बाइक जो मैं बहुत खुशी से चलाता हूँ वो है FTR 1200S।
और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाइकिंग का शौक जो मुझे लगा है ये इंडियन बाइक चला के ही लगा है। तो बस यही है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी और बहुत ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं है। क्या मतलब, एक आप ट्रैवल करते हैं, आप कुछ स्पोर्ट खेल लेते हैं, लेकिन बाइकिंग में जो मजा आता है, जो फ्रीडम मिलती है आपको जब आप हाईवे पे जाते हैं। और मैं बहुत सेफ राइडर हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत फास्ट चलाता हूँ, सेफ राइडिंग करता हूँ। ये मैं एडवोकेट भी करता हूँ कि जब भी बाइक चलाएं, जब भी बाइक के ऊपर बैठें, पूरा गियर पहन के बैठे, हेलमेट, पैड्स, जैकेट, सब कुछ। अगर छोटे डिस्टेंस के लिए भी जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप सेफ रहें। तो बड़ा मजा आता है। हमारा एक गैंग है जिसका नाम है बाइकर गैंग, और हम लोग सब चले जाते हैं कभी भी मौका मिलता है। अभी तो खैर बरसात चल रही है, तो जैसे ही बरसात खत्म राइट। होती है तो निकलने वाले हैं। ओह दैट्स ग्रेट। सो सर टेल मी, जैसे मैंने बताया कि फॉर मी, मैंने तो आपको स्वाभिमान से देखा हुआ है, एंड आई वाज अ स्कूल किड एट दैट मोमेंट, एंड क्या by बात the कर रहे grace of God, yeah, of course. हैं? अच्छा, क्या उम्र है आपकी अभी? Sir, I would be around 35. यू आर अराउंड 35, मतलब खुद की उम्र तो आपको पता होनी चाहिए यार, एग्जैक्ट। Sir, 35 जस्ट हुआ हूँ ना, इसलिए अराउंड ही कह रहा अच्छा, हूँ। बर्थडे। I've just turned 35 this July. तभी आप शायद 10 या 12 साल के होंगे जब आपने स्वाभिमान देखा होगा। बिल्कुल, क्या बात बिल्कुल, है। बिल्कुल सर। एंड बिल्कुल। I would just say कि you were an instant heartthrob उस टाइम के लिए। टेलीविजन पे you were a face जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। So tell me, this would have come back to you, आपको ये feedbacks मिले होंगे, आपको ये stardom जो मिला था। How did it, how did you handle it? कि पहला big break, and आपने एक post भी डाली थी अपने Instagram feed पर स्वाभिमान वाली पिक्चर में से, जहाँ पे एक cordless phone पकड़ा हुआ था, and you had written a nice caption below that. So tell me, कैसा था सर ये जर्नी एंड बिकमिंग द फर्स्ट सोप ओपेरा फेस? सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि हाउ डिड आई हैंडल माई स्टारडम। सोनाली हाय, मैंने पढ़ा आपकी उम्र थी 15 साल। हाँ, मुझे जितने भी लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हम 10, 12, 15 साल के थे, आप बड़े, आप तब बड़े हो गए, हम बड़े हो गए। खैर, स्वाभिमान की जो सक्सेस थी, मैंने बहुत अच्छी आई या वो सक्सेस ठीक से हैंडल नहीं, वो सक्सेस हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लॉन्जिविटी के लिए किसी भी चीज में आप बहुत, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो मोर देन योर फेलियर्स यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल योर सक्सेस। एंड आई मस्ट हैंडल माय वेरी वेल। वो कहीं ना कहीं एक छोटे शहर से आप आते हैं बंबई, और आपको इतनी सक्सेस ओवरनाइट मिल जाती है, तो आपको लगने लगता है कि भाई मैं तो जो भी करूंगा अच्छा ही होगा, और मेरे में तो मिडास टच है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मैंने उस दौरान जो चीजें मुझे करनी चाहिए थी मैंने की नहीं। मैं एरोगेंट हो गया था, बहुत एरोगेंट, दिमाग में बैठ गया था कि मैं ही मैं हूँ। मुझे लगता था कि शाहरुख खान भी मेरे सामने कुछ नहीं है। और ये सारी चीजें जो हैं, ये एक इम्प्रेशनेबल एज का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा बचपन चल रहा था। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि प्लीज, लेकिन जब सक्सेस आपको मिलती है, ठंडे दिमाग से, आराम से उसे एंजॉय करिए, लेकिन उसे हैंडल करना सीखिए। थैंक यू गाइस, आई एम रीडिंग योर मैसेजेस एज आई एम टॉकिंग, आई कैन रिस्पॉन्ड टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। तो बस यार, तो स्वाभिमान का वक्त ऐसा था। लेकिन उसके बाद जो एक 10 साल का पीरियड था, जब मेरा एवरीथिंग आई वाज डूइंग वाज एक्चुअली टचिंग गोल्ड, तब एक एक स्टेप, और सीखते सीखते अब जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, जितनी भी सक्सेस थोड़ी बहुत भगवान ने दी है, ऊपर वाले ने, अब सीख गया हूं। अब अपने सक्सेस को हैंडल कर लेता हूं। एंड आई थिंक सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है कि जैसा आपने बताया जर्नी काफी अच्छी थी, एंड उतार चढ़ाव भी आपने देखे, एंड यू लर्नड अ लॉट। तो अगर आप कुछ शब्दों में लाइफ की डेफिनेशन देना चाहेंगे अपने हिसाब से, तो वो क्या होगी? लाइफ की डेफिनेशन कुछ शब्दों में देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो भी करें, शिद्दत से करें। जो भी काम, चाहे वो आप अपनी जिंदगी प्रोफेशनली देखें या पर्सनली देखें, कुछ भी देखें, जो भी काम करें शिद्दत से करें, जिंदगी इज्जत से जिए, ताकि आप जब
यहाँ से जाएं तो लोग कहें कि वाह ये अच्छा आदमी था। मेरी जिंदगी का दारोमदार इन्हीं चीजों पे टिका हुआ है। कितनी सक्सेस मिलती है, कितनी फेलियर रास्ते में देखनी पड़ती है, ये सब तो होगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी आसपास के लोग हैं जिनके साथ मैं काम करूं या जिनके साथ रिश्ता बने, मेरे जाने के बाद यही कहें कि भैया ये अच्छा आदमी था। क्योंकि आप जिंदगी भर मेहनत करते रहें, काम करते रहें, आपको सक्सेस हासिल हो, आपको पैसे मिले, सारी चीजें जो मटेरियलिस्टिक होती हैं वो मिले, और लोगों के मन में, लोगों के जहन में आपके प्रति सद्भावना ना हो, तो फिर उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग यही कहें कि भाई अच्छा आदमी था। आई थिंक सर आप ये सोच भी नहीं सकते कि लोग ना कहें, डेफिनेटली लोग कहेंगे ही, बिकॉज जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ये बोलना और उसमें आवाज में कन्विक्शन होना, ये दो अलग अलग चीजें जो आपके पास दोनों हैं, एंड इट सेज दैट यू आर नॉट जस्ट स्पीकिंग इट, यू आर फीलिंग इट एंड सेइंग इट, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सर मेरे पास यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं मेरे पास यहाँ दूसरे फोन पर, तो देयर इज अ क्वेश्चन दैट starts with a good compliment that for us you are a gift to the film industry, but did you ever got a thought that I would have done better in some other field? तो Actor मैं नहीं तो क्या? इस सवाल का जवाब ऐसे देना चाहूंगा कि मैं कभी भी एक्टर बनना नहीं चाहता था, मैं कभी भी इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहता था। इनफैक्ट भाई साहब इंडस्ट्री में आ गए थे और मुझे उनसे कोफ्त होती थी कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं, ये कोई काम है? हमारे पिताजी जो हैं वो बिजनेसमैन थे, हमारी माताजी जो हैं वो टीचर हैं, तो ये इस फील्ड में नहीं आना था। लेकिन जिसे कहते हैं डेस्टिनी, डेस्टिनी मुझे यहाँ खींच लाई। इससे पहले मैं बिजनेस स्टडीज के लिए अमेरिका जाने वाला था, और मेरा हमेशा से यही था कि मैं किसी कंपनी में काम करूं, मार्केटिंग में या फाइनेंस में, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। तो Okay. की ख्वाहिश कभी थी नहीं। हमेशा सोचता था कि किसी अच्छे से ऑफिस में बैठूंगा, अच्छी सी लंबी घर होगा, बस यही मेरी ख्वाहिशें थी। लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी। ही हैड बेटर प्लान्स फॉर मी, ही हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी, और इसीलिए एक्टर बन गया। हाँ, लेकिन अगर एक्टर नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी जब अच्छी चीजें नहीं होती हैं तब लगता है कि यार काश एमबीए पूरा कर लिया होता तो आज क्योंकि एक एक्टर की लाइफ में स्ट्रगल चलती रहती है और बहुत पब्लिक होती है वो स्ट्रगल। Definitely. लेकिन ऊपर वाले की मुझ पे ये कृपा रही है कि जितनी भी स्ट्रगल रही है उसके बावजूद मैं खुश रहा हूँ, मेरे आसपास वाले खुश रहे ज्यादातर, तो ठीक है, अच्छा है। Okay. So I think I would not disagree कि with the person who has sent me this question, वो अभी भी लिख रहे हैं कि सर अगर ये एक्टर नहीं होते तो हमें इतने अच्छे अच्छे रोल्स देखने के लिए, और we would have missed the talent. So that's the thing that I would agree to कि yes, we would have missed the talent. थैंक यू सर। And sir, let me just tell you, I mean मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत टाइम से आपको देखता आ रहा हूँ. There's one special thing. I just told one of my friends that I'm going to interview you today. तो स्पेशली उसने मुझे याद दिलाया, आप हम मूवी देखने गए थे आपकी, शूट आउट एट लोखंड वाला, एंड द एंटायर मूवी वाज लाइक, द कंप्लीट मूवी वाज सच एन ऑसम मूवी, बट usually you don't see boys crying in the theater. I saw my friend sitting next to me crying, and वो सीन था जब आप अपने पेरेंट्स को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि मैं I don't want to die and all that. So that was an awesome scene. And when I told my friend, he said, "Sir, एक बार यार उनको जरूर बोलना कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा था." So I said, "I'll definitely do that." और मैं उस सीन के पीछे एक कहानी है छोटी सी जो आपके दोस्त को बता दूं आपके माध्यम से। उसमें मेरे जो डायरेक्टर थे अपूर्व लाखिया साहब, उन्होंने मुझे बिना बताए, जब मैं फोन पे था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऐसे रिएक्शंस आ रहे थे, मुझे बिना बताए कनपट्टी के थोड़े से 1 मीटर दूर पे एक्चुअल फायरिंग की थी बंदूक की। तो वो रिएक्शन थी, मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा करने वाले हैं, तो रिएक्शन की वजह से मेरी जो परफॉर्मेंस है, और वो पूरा एक शॉट में हुआ था, उसमें कोई कट नहीं था। हालांकि तो एक शॉट ट्रॉली पे किया था मेरा फोन कॉल, और मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर के उस छोटे से एक स्टंट ने उस पूरे सीन को लिफ्ट किया, और मैं खुश हूं कि ऑडियंसेस ने उस सीन को बहुत सराहा। इतने सारे दिग्गज एक्टर्स थे पिक्चर में, लेकिन लोगों को अभी भी मेरा लास्ट जो डायलॉग था वापस आने के बाद,
जब मेरे को विवेक पूछता है कि तू वापस क्यों आया, और मैं उसको देख के बोलता हूँ क्योंकि मैं फट्टू नहीं हूँ। लोगों को 15 साल बाद, 14 साल बाद वो डायलॉग याद है, एक लाइन। सर ट्रस्ट मी, ये वाला डायलॉग तो सबको याद होगा। आई थिंक मैं वो मूवी, आई स्टिल हैव दैट मूवी विद मी एंड आई सिद्धू, कीप वॉचिंग। मेरे एक दोस्त हैं सिद्धू, जो बहुत मेरे भाई भी हैं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं। तो सिद्धू वर्धान का रोल आपने जो मुझे दिया था वो मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि वैसा एक और रोल आप लिखें मेरे लिए बहुत जल्द। Okay, so Sanjeevani ka Vardhan ka role, and that was really awesome. And I think, sir, not just that movie. I quite remember you in Plan as well, जो आपकी मूवी थी। So मेरे लिए it's totally, it was a pleasure कि इतने सारे उसमें, सारे आप लोग हैंडसम बंदे थे एक स्क्रीन पे, लेकिन नोटिसेबल आफ्टर संजय दत्त, if I had the voice that I could relate to was yours. So that's why अरे I say, I think that is something that I can call myself a fan of yours, and especially then talking about LOC Kargil. सर वो बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी, इतने सारे एक्टर्स, और उसमें आपका स्केड्यूल, एंड यू एक्चुअली शॉट इन दैट ग्रूलिंग वेदर। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। एलओसी के बारे में अच्छा सवाल आपने इसलिए किया क्योंकि कल ही कारगिल विजय दिवस था, और एलओसी कारगिल वाज अ फिल्म व्हिच वाज मेंट टू कमेमोरेट ऑल द हीरोज। के साथ काम करके एक तो मैं बात ये कहूंगा कि हर एक्टर को अपने रिटायरमेंट से पहले एक वॉर फिल्म करना बहुत अच्छा लगता है। एक हमेशा एक इच्छा बनी रहती है कि एक वॉर फिल्म तो जरूर करें, क्योंकि इससे ज्यादा करीब से आप अपने देश की आर्मी को देख ही नहीं पाएंगे। आप वो महसूस कर पाएंगे जो एक आर्मी ऑफिसर महसूस करता है। जो कहानियां हमने सुनी, जो करीब से उन लोगों को देखा, जिस तरह से उनका रहन सहन, जिस तरह से वो लोग रहते हैं, और उनके अंदर जो ये जो हम बोलते रहते हैं, अरे आई एम पेट्रियोटिक, हम झंडा फैलाते हैं, ये वो लोग बिना कुछ कहे, बिना कुछ रेज कर झंडा लहराए, उनको देख के पता चलता है कि पेट्रियोटिज्म क्या होता है। वो लोग सोचते नहीं है कि हम आपको बचा रहे हैं या आपकी जिंदगी संभाल रहे हैं, कुछ नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं कि भाई ये देश जितना तुम्हारा है उतना हमारा है, और वो लोग बिना कुछ कहे ये जो कर रहे हैं। तो ये एलओसी कारगिल में मुझे महसूस हुआ। मेरे जितने भी सह कलाकार हैं वो भी आपसे यही कहेंगे कि हम जब लद्दाख में थे, लेह में थे, वी वर वेरी वेरी क्लोज टू, इनफैक्ट हमने शूटिंग की थी टाइगर पॉइंट पे। और वो जो एक इमोशन आपके थ्रू दौड़ता है, वैसा इमोशन मैंने न पहले न उसके बाद कभी भी महसूस किया। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं एलओसी के बारे में, ये जेन्युइन ट्रूथ है। बड़े से बड़ा एक्टर वहां संजय दत्त साहब भी थे। संजय दत्त साहब भी पूरे दिन यूनिफॉर्म में रहते थे। हम इंडियन कपड़े नहीं पहनते थे, वो पूरे 40-45 दिन हम हमेशा यूनिफॉर्म में रहते थे, ताकि वो महसूस हो कि भाई हम भी एक जवान है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस थी बहुत, दे वर वेरी टफ क्योंकि वी वर नॉट यूज्ड टू इट। लेकिन एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वाज वी वर फायरिंग रियल बुलेट्स। जब हमने AK-47 फायर किया था, वो रियल AK-47 था, क्योंकि उसका फील आना बहुत जरूरी था। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। एक बार एक हम एलओसी स्पेशल करेंगे बहुत जल्द आपके साथ। Thank you so much, sir. We'll be looking forward to it. And sir, you have also played the director's role. आपने एक डायरेक्टर, एक छोटी सी आई थिंक 10 कहानियों में आपकी एक छोटी सी एंथोलॉजी में आपकी एक शॉर्ट फिल्म थी। तो बताइए सर, डायरेक्टर का रोल या डायरेक्टर की चेयर या एक्टर का चेहरा, क्या ज्यादा पसंद आता है आपको? मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं एक्टर तो कभी बनना ही नहीं चाहता, तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा वहीं पे कि मैं हमेशा से डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि भगवान ने मुझे एक एक्टर बनाया, कुछ सोच के बनाया होगा, तो मैं वो भी लाइफ का रोल अदा किए जा रहा हूँ। लोगों को मेरी परफॉर्मेंसेस अच्छी लग रही हैं, और हाल ही में जो 4-5 फिल्में लास्ट में की हैं मैंने, मेरी सारी परफॉर्मेंसेस, चाहे वो टेलीविजन पे हो या OTT पे हो या फिल्मों में, लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे कभी कभी अपने ऊपर शक होता है कि भाई ये मैंने अभी हाल ही में, और आपको मैं बताता हूँ, देखिए मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं इंटरव्यू पे भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे कभी अपना काम उतना अच्छा लगा नहीं है, लेकिन जो 2 काम मुझे बहुत अपने अच्छे लगे, वो एक है शो मेमोरीज करके, जो फिलहाल वूट पे है। मेमोरीज से मेरा काम बहुत अच्छा लगा, और मेरे लिए ये कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे मेरा काम अच्छा लगता ही नहीं।
और दूसरी बात मेरा काम बहुत अच्छा लगा था वो काबिल में लगा था, क्योंकि आप जब एक ऋतिक के जैसे सुपरस्टार गुड लुकिंग टैलेंटेड आदमी के साथ काम करते हैं, अगर आप भी उस स्तर की परफॉर्मेंस नहीं देते हैं और आप भी वैसे नहीं लग रहे हैं, तो लोग आपको नहीं देखेंगे, लोग नहीं। That's very true. और फिर जब मैंने काबिल की शूटिंग के दौरान ऋतिक ने मेरे बारे में और मेरे परफॉर्मेंस के बारे में ट्वीट किया, तब मुझे लगा कि नहीं यार, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, अब और बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर का जो हीरो है वो आपको बोल रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ये 2 फिल्मों में अपना काम बहुत अच्छा लगा है। और सच्ची में आपको बताऊं, शूट आउट में लोगों का मतलब मुझे अवार्ड भी मिले, लेकिन मुझे अपना काम इतना अच्छा नहीं लगा था जब तक मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी। मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मैंने कुछ अच्छा कर दिया। हाँ, वो फोन कॉल में महसूस हुआ था, पर अदरवाइज पूरी पिक्चर में ये महसूस नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी ऑडियंस के साथ, में गैलेक्सी गया था पिक्चर देखने के लिए, वहां लोगों के रिएक्शन देखे मैंने अपने एक्शन सीक्वेंसेस पे, अपने गानों पर, तब मुझे ये इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अरे बाप रे, यहाँ पे भी कुछ ठीक ठाक कर लिया मैंने। नहीं सर, बट दिस इज बीइंग द सेल्फ क्रिटिक जो आप हैं, और आपने ये पब्लिकली एक्सेप्ट किया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी कि आप अपना काम, आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक हैं। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से आई वुड नॉट से कि आपका काम कहीं पे भी, स्पेशली काबिल में, तो इट वाज कि yes, the presence of Hrithik Roshan on the screen is huge, and उसके सामने you getting equally noticed is a big achievement, and आपने वो बहुत अच्छे से निभाया। So sir, speaking of acting, रोनित सर आपके भाई वो भी एक्टर है, आप भी एक्टर है, तो कभी घर में ऐसा होता है कि मैंने ये अच्छा किया, तूने ये अच्छा नहीं किया, या ये क्रिटिक बाजी घर में आपस में कभी होता है? सच बताऊं, और उम्मीद करता हूं कि रोनित साहब ये इंटरव्यू नहीं देख रहे हैं। सच बताऊं तो मैं अपने बारे में या अपने परफॉर्मेंसेस के बारे में या अपने काम के बारे में या अपनी फिल्मों के बारे में कभी घर पे बात नहीं करता हूं। हम लोग कोई घर पे बात नहीं करते हैं, और रोनित जी जो है वो बोलते हैं और मैं सुनता हूं। उन्हें उनका जो उनका व्यक्तित्व है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में या परफॉर्मेंस के बारे में या चीजें शेयर करें। मैं थोड़ा सा शाय हूं, मैं उतनी बातें नहीं करता हूं अपने बारे में। ये जब मुझे इंटरव्यू में कहा जाता है कुछ कहने के लिए, तभी और सिर्फ तभी मैं अपने परफॉर्मेंसेस के बारे में या अपनी फिल्मों के बारे में बात करता हूं। उसके अलावा मैं कभी नहीं करता हूं। होने वाली होती है या कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ होने वाला, तो उसकी पीआर के सिलसिले में अगर मेरे बारे में बात करना हो तो मैं करता हूँ, वरना नहीं करता। और इसकी बात, मैं किसी चीज को सही गलत नहीं कहूंगा, लेकिन ये मेरा पहले से रहा है। मुझे ना खुद अपने बारे में बात करना पसंद है, और ना ही अगर आप अपने बारे में बात करना शुरू कर दे तो वो भी मुझे पसंद नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप जो भी करें, औरों को आपके बारे में बात करना चाहिए। अगर आपने और आप और दूसरे लोग, हाय सुची, हाय यू माय लव, गुड टू सी यू हियर, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको मेरी कोई फिल्म पसंद आई हो तो आप मुझे बताएं, तो उससे ज्यादा खुशी मिलेगी मुझे। तो ये है। और रोनित जी के बारे में ये कहूंगा कि रोनित ने पिछले 15 साल में जो काम किया है, उन्हें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनका मतलब मैंने उड़ान जब देखी थी जाके, और मैं ये झूठ मतलब उनकी प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने उड़ान देखने के बाद मैंने उन्हें, एक तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मेरे आंसू निकल गए, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्होंने किससे इंस्पायर होके वो परफॉर्मेंस किया था। मैंने उन्हें तभी कहा था कि इस फिल्म के लिए आप सारे अवार्ड जीतोगे, और वो सारे अवार्ड जीते उड़ान के। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी जब वो नेशनल अवार्ड नहीं जीते थे, क्योंकि उस साल उनसे बेहतर परफॉर्मेंस एज अ लीडिंग मैन या जो भी सेंट्रल कैरेक्टर उस साल किसी भी फिल्म में, हिंदी फिल्म में नहीं आया था। और मैं ये कह रहा हूँ, आप सबके लिए कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। तो मुझे ताज्जुब हुआ था कि उन्हें नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि उन्हें मिलने वाला था। तो हाँ, तो उन्हें तो कुछ उनके टैलेंट के बारे में मैं क्या कहूँ, उनसे बहुत बहुत हूँ, और बहुत वक्त लगेगा उनके फिनेस और जो डेप्थ में वो चले गए हैं। आप लोग, मैं कहना चाहूँगा, आप शो देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक मस्ती वाला शो नहीं है, हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ सीखें। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जिंदगी में जब अड़चने आती है,
जब रोड़े आते हैं, जब फेलियर्स आते हैं, वो फेलियर्स आपको बेहतर प्रोफेशनल और बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। जो फेलियर्स रोनित ने देखे हैं लाइफ में, उसी की वजह से उनके परफॉर्मेंसेस में इतनी डेप्थ आई है। तो ये जरूर याद रखें आप। And that's true, sir. And Udaan, I think I cried a lot while watching Udaan, and trust जी, me, the role that Ronit sir played, it was mind blowing. I mean, Ronit sir का मैं already बहुत बहुत ज़्यादा fan हूँ. मैंने पूरा अदालत का एक एक एपिसोड देखा है हाउ just स्वीट। for him. And pardon sir? उनसे जरूर कहूंगा आपकी ये बात। Thank you, sir. Thank you. Please, definitely कहिएगा. And sir, speaking of performances, हर एक्टर के पास एक एक ऐसा कभी कभी एक सपना सा बन जाता है कि irrespective of the gender, irrespective of the kind of role, मुझे काश मैंने ये रोल किया होता तो मुझे मजा आ जाता। ऐसा कोई रोल जो आपके जहन में या नजर में है? अब ये क्या है कि मैं मेरे जो गॉड हैं, मेरे जो परफॉर्मेंस के गॉड हैं, जिनको देख के मैं आज भी ब्लश करता हूँ, वो अमिताभ बच्चन है। ओह, आप माने या ना माने, स्वाभिमान में 3.5-4 साल जब शो चला था, 4 साल तक शो चला था, 4 साल मैंने सिर्फ अमिताभ बच्चन की कॉपी की थी। आप लोगों को नजर नहीं आया क्योंकि मेरे अंदर एक अलग चार्म था, तो वो नजर नहीं आया। लेकिन जो मुझे जानते हैं वो लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने सिर्फ उनको कॉपी किया है। तो अगर आप पूछें कि मैं ऐसा कौन सा रोल करना चाहता हूँ, तो दीवार में जो अमित जी ने रोल किया था, वो एक रोल है जो मेरे बहुत दिल के करीब है। मुझे बहुत मजा आता है आज भी। आप मानेंगे नहीं, मैंने कम से कम 50 बार दीवार देखी है। आपने भी ओह, देखी होगी दीवार। डेफिनेटली। मैंने 50 बार दीवार देखी है। और दूसरी फिल्म जो मैं करना चाहता हूँ, जो अग्निपथ में उनका कैरेक्टर था, वो जरूर करना चाहता हूँ। तो हाँ, ये 2 चीजें हैं जो मेरे लिए एक बकेट लिस्ट का है। तो अब जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द ऐसे रोल्स करूंगा। सर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कहने ही लगा था कि अगर दीवार आपने 50 बार देखी, हाउ कुड यू मिस अग्निपथ? एंड आपने कह ही दिया कि अग्निपथ मैंने बहुत बार देखी है और वो एक रोल करना चाहेंगे। पॉजिटिव, क्योंकि मेरे भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर से कह रहे हैं कि भाई आपने बतौर डायरेक्टर राइस प्लेट बनाई जो बहुत अच्छी थी, और आपको बहुत ही जल्द फिल्म बनानी चाहिए। सिद्धू, यू नो मोर देन एनीबडी एल्स दैट टॉप ऑफ माय बकेट लिस्ट इज जस्ट दैट। मेरा बस चले तो मैं बाकी सब छोड़ के सिर्फ फिल्म बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि 2021 में वो जर्नी शुरू होगी, और 2022 में आप लोगों को, चाहे वो OTT पे हो या स्क्रीन में हो, जहां पे भी हो, आप लोग मेरे डायरेक्टोरियल देख सके। सिद्धू, आई लव यू बडी, एंड आई नीड योर सपोर्ट ऑन दैट। हाँ जी, आप कह रहे थे। जी, तो सर, मैं ये कह रहा था कि सिंस वी आर टॉकिंग अग्निपथ एंड आपकी फेवरेट मूवीज में से भी एक है, तो एक डायलॉग कोई अगर आप अग्निपथ का हमारे लिए परफॉर्म कर सके। अरे बाप रे। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम सुहासिनी चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, बाप का नाम, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 8 महीना 12 दिन, ये 16वां घंटा चालू है गायत्री साहब। आज शाम को अपना मौत के साथ अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है। तो आपने जो मुझे एम्बेरस किया है अभी बैठे बैठे, मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ये हम कॉलेज में किया करते थे, और आपने एक्टर बनने के बाद ये करा लिया मुझसे। लेकिन आपने मेरी आज, मैं आपको मना कैसे करूंगा। सर, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक आपने जो एक चीज कही, आपके चाम में शायद हमें अमिताभ बच्चन की वो झलक आप में स्वाभिमान में नहीं दिखाई दी, पर डेफिनेटली अभी तो दिखाई देगी। एंड वाओ, आई मीन, आपने आवाज से लेकर वो जो लय था पूरा डायलॉग का, यू हैड इट इन यू। आई थिंक वेरी वेल डन विद दैट, ट्रस्ट मी। अब आई डोंट नो, आई मीन, आपके एज में तो अमिताभ बच्चन वॉज दिलीप कुमार एंड अमिताभ बच्चन, देवानंद, दीज वर गॉड ऑफ एक्टिंग। ट्रस्ट मी, फॉर मी ऑल्सो, आई वुड से फॉर सम मूवीज आई एक्चुअली लुक अप टू हिम। मैंने खुदा गवाह आई डोंट नो कितनी बार देखी है। आई एम क्रेजी अबाउट खुदा गवाह। वो आजकल लेट भी दिखाते हैं टीवी पे, मैं कभी रात को जाग रहा हूँ, मैं पूरी देख के सोता हूँ। तो फॉर खुदा गवाह आई एम दैट क्रेजी। समझ, खुदा गवाह आ रही है, मैं उठ के बैठ जाऊंगा, हाँ चलो मूवी देखते हैं। तो सर, अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन, डेफिनेटली आपने रोनित सर का एक नटशेल में हमें बताया कि हाउ ही हैज हैड हिज जर्नी, आपके साथ भी होंगे। सो
what was your factor that kept you going? आपका motivation factor क्या था? यार एक तो मोटिवेशन फैक्टर हमेशा से रहा है, जो अभी भी है, कि जिंदगी में सक्सीड तो करना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन तो होता ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन बी। सक्सीड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हैं ही, वो एक प्रैक्टिकल बात होती है। दूसरी बात ये है कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं फेलियर बन के रहूं, करेक्ट? दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर इन माय लाइफ कि बॉस, अगर मेरी पिक्चर नहीं चलती है, या मेरा कोई शो नहीं चलता है, या कुछ भी जो भी कर रहा हूं मैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो मैं फटाक से दूसरे में लग जाता हूं कि भाई अब करना पड़ेगा ना, क्योंकि करना तो है ही। और जितना आप, जैसे मैं एक्टर हूं, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ के अंदर, आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फेलियर is only one step before success. You have to fail to succeed. That's true. That should be your mantra of, what more motivation do you need? कि बॉस आज मैं फेल हुआ हूं, एक और कदम लूंगा, हो सकता है आप सक्सीड कर लूं, एक और कदम लूंगा, कदम लेता रहूंगा, छोटे छोटे फेलियर्स आते रहेंगे, कभी बड़े फेलियर्स आएंगे, लेकिन सक्सेस आएगी जरूर। कुछ भी कर लो आप, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आप कोशिश करते रहें, अगर आप इस रास्ते पे चलते रहें, जो भी रास्ता आपने चुना है, यू विल सक्सीड। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, एंड आई कैन राइट इट डाउन एंड गिव इट टू यू। ये और बात है कि अगर आपने अपना हुनर पहचानने में गलती कर दी, और आप किसी और, यू आर बार्किंग अप अ रॉन्ग ट्री, तो गड़बड़। लेकिन अगर आपको पता है कि ये मेरा हुनर है और मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा और मुझे यही काम करना है, तो आप जरूर सक्सीड करोगे। और इसी बात पे सर मुझे बच्चन साहब के पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की दो पंक्तियां याद आती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आई थिंक that's really nice. Coming to a part where I was thoroughly surprised and I was really happy knowing that you have given voice for not once, not twice, but 3 times for Chris Pratt in Guardians of Galaxy Volume 2, Avengers Infinity and Avengers in Endgame. कैसा था सर एक्सपीरियंस? यार इट्स अ बिटर स्वीट मेमोरी। बिटर स्वीट इसलिए है क्योंकि जब मैं गया था उनके लिए डब करने के लिए, तो उन्होंने ऑलरेडी वो पूरा क्रिस प्रैट का जो है वो डब करके रखा था किसी और के साथ में, एक डबिंग आर्टिस्ट थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने डब किया था। लेकिन उन्होंने मुझसे एक सैंपल करवाया, इट्स कॉल्ड अ सैंपल। तो मैंने वो जब सैंपल उनके लिए डब किया, तो जो डिज्नी वाले थे उन्होंने कहा यार ये ऐसी आवाज होती है हीरो की, ऐसी जो जिन्होंने डब किया था उन्होंने बुरा नहीं किया था, लेकिन जो हीरो है, हीरो की आवाज ऐसी होनी चाहिए। तो उसमें हो क्या गया कि उन्हें इतनी आवाज पसंद आई कि उन्होंने मुझे क्रिस प्रैट की आवाज बना दी हिंदुस्तान में। तो जब क्रिस प्रैट की पिक्चरें आती हैं तो उनके लिए मुझे डब करना पड़ता है। बिटर स्वीट का बिटर इसलिए वो स्वीट था, बिटर इसलिए क्योंकि उसके बाद मैं किसी और के लिए डब ही नहीं कर पाया, क्योंकि किसी भी आप हीरो के तो आपकी आवाज वो बन जाती है। हालांकि अब मुझे लगता है कि अब आगे चल के मैं और लोगों के लिए डब कर पाऊंगा, क्योंकि जो उनकी आखिरी फिल्म आई अभी 2021 में, उसके लिए मैंने हिंदी डबिंग नहीं की है, और जिन्होंने भी की है बड़ी अच्छी की है। तो सर the fans and the students are saying कि सर एक डायलॉग उसमें से, उस डबिंग में से आपका हो जाए तो। ऑनेस्टली मुझे क्रिस प्रैट के डायलॉग कैसे याद रहेंगे यार, बड़ी मुश्किल से तो खुद के डायलॉग याद करता हूँ। ओके, तो सर आपने एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत अच्छी अपनी पोस्ट डाली थी जिसमें आपने लिखा था देयर आर नो शॉर्टकट। तो टेल मी, आई मीन ये इंस्पिरेशन, एक तो यू हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, यू केम बैक टू द फिट पॉइंट, एंड ट्रस्ट मी, मुंबई सागा में तो यू लुक रॉकिंग। आई वॉच दैट मूवी एज वेल। So I think sir, tell us कि ये no shortcuts and ये inspiration for coming back to that fit regime and इंस्पिरेशन कुछ नहीं था उसमें यही था कि मैं चाहता था that I'm the hottest 50-year-old in India. सिंपल इंस्पिरेशन, वही इंस्पिरेशन था, वही मोटिवेटिंग फैक्टर था कि बॉस आई वांट टू बी द हॉटेस्ट। मैं दिवाली पार्टी में, यहीं घर के सामने दिवाली पार्टी में गया था, तो मेरी मुलाकात सलमान भाई से हुई, और सलमान मेरे बहुत शुभ चिंतक रहे हैं। ही ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स मी फ्रॉम द टाइम आई केम टू द इंडस्ट्री। उन्होंने मेरी पहली फिल्म का क्लैप भी उन्होंने दिया था, मुहूर्त उन्होंने किया था।
तो वो हमेशा मुझे 60s के हॉलीवुड हीरो कहते हैं। जिन जब भी उनसे मुलाकात होती है, जब भी वो मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी के साथ तारुफ कराते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं डजंट ही रिमाइंड यू ऑफ रॉक हडसन। तो खैर उस दिवाली की रात को उन्होंने कहा कि व्हाट हैज हैपेंड टू यू, यू नो, यू आर लुकिंग लाइक अ फैट काउ। तो मैंने कहा अरे यार ये फैट काउ मतलब ये क्या मतलब, और मैं वाकई मोटा हो गया था तभी। तो मैंने फिर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि सर बहुत गड़बड़ चल रही है, स्ट्रेसफुल फैक्टर्स हैं करियर में, जो फिल्में करनी है वो नहीं मिल रही हैं। तो इसे भैया हमारे सबके साथ होता ही है, तो या तो आप फिट हो जाएं इस दौरान ताकि आप तैयार रहें अगले प्रोजेक्ट के लिए, या इसी तरह रहिए तो फिर ऐसे ही रोल मिलेंगे आपको या नहीं भी मिलेंगे। तो वो बात जो उन्होंने की, इट मेड सेंस टू मी एंड आई स्टार्टेड काइंड ऑफ रिक्रिएटिंग माई एंटायर। यू यहाँ से शुरुआत होती है, जैसे दिमाग सेट हो गया उसके बाद आई एम लाइक अ डॉग विद अ बोन। अगर एक बार मैंने तय कर लिया मुझे कुछ करना है तो फिर मैं वो करके ही रहता हूँ, फिर उसके बाद मुझे कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे कुछ 6-8 महीने लगे वो बॉडी बनाने में। वो बॉडी बनाई मैंने, और देखिए जैसे ही बॉडी बनाई मुझे मुंबई सागा ऑफर हुई। ये नहीं था कि मुंबई सागा के लिए मैंने बॉडी बनाई। तो फिर वो फिल्म भी मिली, उसके बाद लोगों ने तारीफ भी की, तो दैट कीप्स मी गोइंग। अब मैं लीन हो गया हूँ, अब मुझे लीन बनना है एकदम, जैसे एक स्विमर की बॉडी होती है, अब उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप कोई ना कोई गोल्स देते रहिए और लगे रहिए और चलते रहिए। Alright, I again have to mention sir, मैंने मुंबई सागा I think जब देखी तो your character throughout the movie was noticeable and last का जो punch था where you took over, that was the ultimate part and I think आपका role throughout, I mean एक एक dialogue, एक एक scene उसमें जिस जहाँ जहाँ आप screen पर थे, it was really nice and I'm not saying this because you are here as a guest but trust me, मैं movie Okay, he's saying something. he he always sees all my lives and he tells me what I should do, and then we are right now we're planning hopefully to do something together. Actually संजीवनी की भी एक अच्छी स्वीट सी कहानी है। जब संजीवनी मुझे ऑफर हुई थी तो मेरी डेट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, मुंबई सागा की शूटिंग कर रहा था। तो सिद्धू का एक दिन फोन आया कि भैया फिर तो हो नहीं पाएगा, कैसे करूंगा। ऐसे भैया बड़े दिनों बाद घर में रौनक आई है, ऐसा रोल आया है, कुछ भी करके हिलाना नहीं। और मैं खुश वो सब मैनेज कर लिया, क्योंकि वरदान हैपेंस टू बी माय, अकॉर्डिंग टू मी, माय मोस्ट बेस्ट नहीं कहूंगा बट माय मोस्ट मेजर्ड परफॉर्मेंस ऑन टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो सिद्धू और मेरा चलता रहता है, वो बोलता रहेगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक सर ऐसे दोस्त होने चाहिए लाइफ में जो हमेशा आपको कॉन्स्टेंटली टच बेस करते रहे एंड देन दे कीप टेलिंग यू ऐसा कर ले वैसा कर ले एंड इट्स रियली नाइस। सो सर speaking of physical transformation and going to the leaner and the fitter side, Right. what would you suggest for the younger generation, the students that are watching you right now on live? What वो kind आपने of ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक सवाल पूछा था कि मैंने वहां पे बोला था कि इट डजंट हैपन इन अ डे, देयर आर नो शॉर्टकट्स। तो ये सबसे पहले तो याद रखिए कि शॉर्टकट मत लीजिए, क्योंकि ये शॉर्टकट जो है ये आपको किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं रहेगा। आप सोचेंगे, आप तस्वीरें देखते हैं, हमारी तस्वीरें देख रहे हैं आप, और लोगों की तस्वीरें देख के बोलते हैं अरे यार ये ऋतिक रोशन ऐसी बॉडी बना ली, रोहित रॉय ने ऐसी बॉडी बना ली, जॉन इब्राहिम की इतनी अच्छी बॉडी है। लेकिन ये इसको वक्त लगता है, वक्त लगता है। मेरा एक ही सजेशन है, स्टे द कोर्स। अच्छा खाना खाइए, अच्छी सोच रखिए, वर्कआउट करिए, कार्डियो करिए, और ये बहुत ही इजी है, रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी तो आपको थोड़ी सी और परहेज करने पड़ेंगे, वो करिए आप। लेकिन डोंट थिंक कि आपको 2 दिन में रिजल्ट मिलने वाला है। टेक योर टाइम, टेक इट इजी, स्टे द कोर्स। जितने भी लोग हैं मैं कहूंगा कि जितना हो सके नेचुरल रहिए, क्योंकि आपको, जैसे मैं प्रोटीन पाउडर्स लेता था, फैट बर्नर्स लेता था, वक्त ने सिखा दिया है कि इन चीजों से ज्यादा हानि ही होती है। जितना कम उन पे डिपेंड कर सकें करें। कितनी सारी चीजें स्टिमुलेंट्स हैं, कॉफी पी लीजिए, वर्कआउट करने से पहले एक शॉट ब्लैक कॉफी का पी लिया, 3 की जगह दिन में आधा स्कूप या 1 स्कूप खा लिया। तो हर चीज को मॉडरेशन में करिए। हो सके तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हमारे जो इंडियन खाने में से बहुत सारी सोर्सेज हैं प्रोटीन के, वेजिटेरियन प्रोटीन के भी हैं। आजकल मार्केट में भी आपको काफी वेजिटेरियन प्रोटीन मिलेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को वो प्रोटीन फिक्स देने के।
आराम से कीजिए, पेशेंटली कीजिए और जल्दबाजी में मत रहिए। ऑलराइट सर, सो सर ये तो हुई फिजिकल फिटनेस की बात। मेंटल जी जी। फिटनेस की बात पर थोड़ा सा आते हैं। यू आर what would you prefer? I mean, for keeping yourself mentally fit, are you into meditation, yoga, and all these things? And how do you define its role in your life? Very, very important, more important than any other physical training and routine. But having said that, I must tell you something is जवाब इतना आसान नहीं है. What do I do and what do somebody else does? Mental health का जहां तक सवाल है, ये हिंदुस्तान में इसकी कॉन्वर्सेशन जो शुरू हुई थी पिछले साल, वो बंद हो गई है. बहुत जरूरी है वो कॉन्वर्सेशन होना. ये सब हर बार हमारे हाथ में नहीं रहता है. That's true. मुझे अगर बॉडी बनानी है तो मैं जिम जाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, वो मेरे कंट्रोल में है. लेकिन मेंटल हेल्थ जो है ये हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहता है. ये कभी कभी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं जो आपके मन में आप कोशिश भी करें तो संभाल नहीं सकते. So please, first of all, if you ever feel like that, if you feel anxious, if you feel that there's something not right, please go and visit a doctor. There is nothing wrong in going and sharing your state of mind with a doctor or a medical practitioner. He or she will tell you what to do. Probably put you on some medication. हिंदुस्तान में ये एक अजीब सा वो है कि अरे यार साइकियाट्रिस्ट के पास कौन जाएगा, हम पागल थोड़ी हैं. साइकियाट्रिस्ट के पास पागल लोग नहीं जाते हैं. हम सब ही मानसिक तौर पे थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं. ये जिंदगी ऐसी है, आजकल की जिंदगी देखिए पिछले 1.5 साल में क्या देखा है इस जनरेशन ने. तो मानसिक स्थिरता बहुत ही कॉमन है. इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं. अगर आपको किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़े, प्लीज जाइए. क्योंकि if you have a fit mind, everything else will follow. And if you have an unfit mind, then God help you. Even God cannot help you. So this मैं गुजारिश आपके सारे स्टूडेंट्स से और उनके जो भाई बंद रिश्तेदार हैं, जो भी आज देखें या बाद में देखें पता नहीं, कि प्लीज कभी भी किसी की जरूरत पड़े, डू नॉट हेजिटेट बिफोर रीचिंग आउट. मैं तो हमेशा इन इंटरव्यूज में कहता हूँ कि इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, प्लीज फील फ्री. मेरा इंस्टाग्राम ओपन है. मैंने कोई उस पर फिल्टर नहीं डाला है. आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. कई लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ. हाँ, रैंडम मैसेज मत करिए, मैं उनका रिप्लाई नहीं करूंगा. लेकिन हाँ, अगर कोई अस्थिरता है मन में या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री. मैं रिस्पॉन्ड करूंगा. तो ट्राई एंड फोर्टिफाई योर माइंड एज मच एज इज इन योर हैंड. इफ नॉट, सीक हेल्प. That's true. And I think this is very important. हमने पिछले साल 2020 में सबने, पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने काफी बात की, डिप्रेशन ये वो ऐसा वैसा. लेकिन अब शायद वो कहीं ना कहीं कम हो गया है. लेकिन still depression still exists. And it's not that depression can only happen to mid-age and senior age people. It can happen to youngsters more often because वो बहुत जल्दी चीजों का प्रेशर ले लेते हैं. Tell you one thing before you move on. You're asking me what I do. I meditate and it really helps. And I must tell you one thing. मैं हाल ही में विपश्यना के लिए गया था. तो यूजुअली लोगों का ये मानना होता है कि विपश्यना में कौन जाता है यार, जो बुढ़े होते हैं, जो 60 साल के होते हैं वो जाते हैं. आप ये बात नहीं मानेंगे, इस बार एवरेज एज वहां पे लोगों की 30 साल की थी. लॉजिक है ना. सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसको होता है? जो अभी काम कर रहा है, जिसे अभी ऊपर अभी वो चीजें नहीं मिल रही है जो वो चाहता है. आप 60 साल के हो गए तो आपको मतलब आपकी तो ऑलमोस्ट मतलब यू आर नियरिंग योर ट्वाइलाइट जोन, राइट. तो ये मानना कि मेडिटेशन बूढ़े लोगों के लिए है और ये उन लोगों के लिए है, और वो ये गलत धारणा है. जितने यंग है, इनफैक्ट 3 बच्चे थे 18 साल के जो यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, वो विपश्यना करने आए थे बस मन को स्थिर करने के लिए. ये खेल ही पूरा मन का है. और आपने जो सवाल पूछा, तो मैं कहूंगा कि कोई भी किस्म की मेडिटेशन अगर आप दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी कर ले तो आपको बहुत मदद होगी और आप इसी जिंदगी में उसका फल देखेंगे. You will see how you react to situations. You will see how much you're in control of yourself. So do not think that it is for the oldies. No, it's not. All right. So that's a great thing, and thank you so much, sir, for enlightening us on meditation. Because yes, we have talked about yoga and all those things, but meditation and its importance for the young ones is very high. और मैं मानता हूँ कि जैसे आपने कहा कि youngsters जिन्हें बहुत कुछ लाइफ में अभी चाहिए और मिल नहीं रहा है, उनके लिए ज्यादा प्रेशर वाली बात है.
So definitely you should do something that takes off, and meditation is one of the best. And हमारे अपने देश का है, so we are proud that we have this heritage. And so, sir, as a concluding part of this conversation, जो मैं चाहता नहीं हूँ कि हो, because I'm really enjoying talking to you. आपके साथ बात करते हुए लग ही नहीं रहा है कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हम बात कर रहे हैं normally, and it's so nice Idea. to talk to you. So, sir, ये बताइए कि you know, as a father, you must have seen a lot of things that you know, your daughter would have gone through as growing up in teens and in adolescence. So, sir, as a father, आपने ऐसी क्या advice अपने daughter को दी है जो आप समझते हैं कि you know, it's one of the very important advices that every child should get? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हर बच्चे, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, आप अपने माता पिता से कहने से संकोच न करें. Please do not hesitate before sharing anything it is that you want with your parents, because your parents will always have your back. Even if you are wrong, they will still have your back. गलतियां सबसे होती हैं और होनी भी चाहिए और होंगी भी. मैं इस भ्रम में नहीं जीता कि मेरी बेटी से गलतियां नहीं होंगी, वो गलतियां करेंगी, उनसे सीखेगी, लेकिन जब वो गलती करेगी और उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, तब मैं वहां होना चाहता हूं. इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे आपके दोस्त हों. ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये बहुत जरूरी है. हमारे देश में ये प्रथा रही है कि माँ बाप होते हैं और बच्चे बच्चे होते हैं. बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट मत करिए. एक उम्र हो जाती है जब वो लोग वो अपना दिमाग यूज करते हैं, उन्हें समझ ज्यादा है मुझसे. मेरी जो बेटी है वो मुझसे बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत जानती है, तो मैं उसे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स फीलिंग बच्चे वाली आती है, उसको देख के ऐसे लगता है ये तो मेरी 19 साल की हो गई है, लेकिन मेरे लिए तो वो 1-2 साल की बच्ची है अभी भी. ठीक है, लेकिन उसकी जो समझ है वो अपनी समझ है. एक माँ बाप का काम होता है उनका सपोर्ट बन के उनके पीछे रहना, उन्हें बताना नहीं कि करना क्या है, कैसे करना है. नहीं, गिव देम द फ्रीडम टू डू एज दे प्लीज, द वे दे प्लीज. Their system will always be different from yours, but be there as a support. That is the system you should look at, and that's what I do. मैं ये ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कियारा ने बहुत कम गलतियां की है लाइफ में, तो ये नहीं कहूंगा कि उनसे कुछ गलती हुई है या मुझे कुछ सुधारने की जरूरत पड़ी है. ये ऊपर वाले की कृपा है मुझ पर. बट अगर कल को उठ के कुछ होता है तो आई नो दैट शी विल कम टू हर पेरेंट्स एंड डिस्कस हर प्रॉब्लम्स विद हर पेरेंट्स. कुछ बातें होती हैं जो वो अपने माँ के साथ शेयर करेगी, कुछ बातें होंगी जो वो मेरे साथ शेयर करेगी, लेकिन आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू पेरेंट. लेट देम फ्लाई ऑन देयर ओन. That's very true, sir. And सर, एक पोस्ट जिस पर बार बार मेरा ध्यान गया जब मैं आपके इंस्टाग्राम पर देख रहा था, वो है आपकी मदर के साथ आपका एक वीडियो आपने पोस्ट किया हुआ था, इसमें रोनित सर भी थे और आप दोनों बिल्कुल नतमस्तक थे उनके सामने. So tell us, I mean, I would like you to share your feelings and I'd like you to give a message to the young students that are listening to you कि you know, I mean, how these young ones should take care of their parents, because looking at that video, I could not hold myself and I could not, stop myself from getting emotional and more respectful towards both of you as brothers. कि आप लोग इतने प्यार से अपने, मैम को इतना अच्छा एक वीडियो डेडिकेट किया था. एंड लुकिंग एट द पिक्चर्स इट सीम्ड ऑल ट्रू, रियल, जेन्युइन एक्सप्रेशन. उसमें कहीं पे भी आर्टिफिशियलनेस नहीं थी. So please tell us, sir, and give them a message so that they can keep that strong bond with their parents, because इस एज में अक्सर पेरेंट्स के साथ झगड़े हो जाते हैं. यार, किसी भी एज में पेरेंट्स के साथ झगड़े होते हैं. मैंने आपको अभी अपनी बेटी के बारे में बताया. मेरी बेटी के मेरे साथ भी झगड़े होते हैं, और तो मेरी मम्मी के भी मेरे साथ झगड़े होते हैं. झगड़े होना तो एक जिंदगी का हिस्सा है. जब किसी भी बात पे आपकी डिसएग्रीमेंट होती है तो लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, डिबेट्स, डिस्कशंस, डिसएग्रीमेंट्स होनी ही है, वो जायज है, होती रहेंगी जिंदगी भर. लेकिन जहां तक आपने मुझे सवाल पूछा है मेरी माताजी का, तो मेरी माताजी के बारे में ये कहूंगा कि अगर जिंदगी में, दुनिया में मैं किसी का कृतज्ञ हूं तो मैं अपनी माताजी का कृतज्ञ हूं, क्योंकि वो ऑफ कोर्स ये नहीं चाहेंगे कि मैं कृतज्ञ हूं. लेकिन हमारे जो पिताजी हैं, बहुत ही मैं 14-15 साल का था जब उनका देहांत हो गया था.
और मेरी माताजी ने घर से बाहर कदम नहीं रखा था तभी। तो सोचिए एक हाउसवाइफ को उस 70s और 80s के दौर में एक परिवार को संभालना, और एक ऐसे दौर में जब आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे पिताजी का बिजनेस क्या था, क्या करते थे, पेपर वर्क क्या होता है, फाइनेंसेस क्या होते हैं, मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं था। और पिताजी के इस तरह अचानक अकस्माती चले जाने के बाद उन्होंने जिस तरह से परिवार की डोर संभाली है, जिस तरह से हम दोनों को बड़ा किया है, मतलब फिल्मों में आप ये स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं सर। फिल्मों में ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती। लोग कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत ड्रामेटाइज किया है। तो माताजी ने इस तरह से हमें बड़ा किया। तो मैं हमेशा सभी से यही कहता हूँ कि माँ बाप होते हैं, देयर इज नथिंग एल्स। जैसे अपने बच्चों के लिए हमारा प्यार है। और ये भी कहूंगा कि कभी कभी ऐसे दौर आते हैं जब हम अपने माता पिता को लेके थोड़े से एम्बेरस हो जाते हैं कि मम्मी स्कूल में मत आओ या कॉलेज में मुझे देखने मत आओ यार, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। ये सब भी नॉर्मल है। इसमें आप कोई बुरे बेटे या बुरी बेटी नहीं बनते, ये भी होने वाला है। जैसे मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता था तो बोलती थी कि डैड तुम ना गाड़ी से बाहर मत निकलना। ऐसे यार कमाल के, मैं तो बड़ा कूल हूँ, कूल डैड हूँ। तो उसका जवाब आया कि you have to really tell me you're cool, then you're not that cool। तो बच्चों का लगा रहता है ऐसा। बट मेरे हिसाब से कि माँ बाप, खासकर माँ होती है और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। दुनिया लड़ ले, आपके माँ बाप आपके पीछे खड़े रहेंगे। एंड आई थिंक ऑन दैट नोट वी शुड कॉल इट a day, and I'm going to be thankful to you that you have called me here to address your students. Sir, the pleasure is all ours, and definitely on this note, इसके आगे मैं कोई सवाल पूछ भी नहीं सकता because जिस नोट पर हम हैं, इसके आगे कोई सवाल पूछना इस इमोशन को भंग करने वाली बात होगी। So thank you so much, sir, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। And once again, it's really a personal pleasure for me, not just on the behalf of UNYC, not just on the behalf of Lovely Professional University, but personally speaking as well, I would really like to thank you। आपने जो टाइम दिया, अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए और आपने इतने genuinely सारी चीजें शेयर की। You know, usually हम इंटरव्यूज जब सुनते हैं, देखते हैं, तो काफी सारे क्वेश्चंस उसमें ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि अच्छा ये तो पूछा ही जाएगा, इसका ये जवाब आना ही आना है। बट जैसा कि आई थिंक आपने आशुतोष को, मेरे कोऑर्डिनेटर को आपने पूछा था कि माय अनस्क्रिप्टेड क्या होगा, तो मैं आपसे लास्ट बस यही क्वेश्चन पूछूंगा सर, लगा कि नहीं माय अनस्क्रिप्टेड था या नहीं था? बिल्कुल तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खुशी सर, हमें भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच एंड वी होप टू हैव यू इन फ्यूचर एज वेल। मे बी ऑन द नेक्स्ट विजय दिवस हम आपके साथ एक कारगिल स्पेशल करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। so much for inviting me. I wish all of you all the very best. आप लोग सब जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, तो आप जब लवली से बाहर निकलें तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जिंदगी लवली 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 ही रहे। All the very best. God bless you. Take care. Thank you sir. Thank you so much. Bye bye.